Hello, JEE Advanced Paper 1, 13 December 2021. So let's discuss it. So these are questions, of course. There are answers that were given. We will verify them. Question number 1. It says a body moves on a horizontal circular road of radius r with a tangential acceleration at. Coefficient of friction between the body and the surface is given as a mu. It begins to slip when its speed is v. Then we need to find what the relation or which relations are going to be correct. So it will be better if we draw a circle or circular path on which the body moves. So let's say this is horizontal circular path on which the body moves, and at any instant the body is at this location. That's going to be center, this radius, and it's moving in, let's say, in this direction, and this velocity or speed is v. It is given that it carries tangential acceleration, so that's at. There has to be centripetal force acting like this. Now we know the centripetal force is given by frictional force, so let's call it as that is F1. There is going to be a force that is going to provide this tangential acceleration, and we know the tangential acceleration is provided by the frictional force acting on the tire in the forward direction. So another friction force is going to be in this direction. So this friction force will be providing needed centripetal force to move in a circular road, and F2 is going to provide this tangential acceleration. So what the F1 is going to be? F1 is going to be equal to mass v square by r, the centripetal force. And what the F2 is going to be? F2 is going to be equal to mass into acceleration in the tangential direction. Now the resultant of these two frictional forces is going to be the net friction force. So if we need to write net friction force, it must be equal to F1 vector plus F2 vector. From here, it's clear that they are going to be at 90 degrees. So we can say F is going to be equal to under root F1 square plus F2 square. Since the body starts to slip, that means the friction reaches to its maximum value. This is static in nature, so this must be reaching to its max value. That means it must be equal to mu into normal reaction. Now since this is a horizontal floor or circle, so normal reaction must be balancing mg. So we can say n is equal to mg. So we got like this: mu m into g must be equal to under root f1 square plus f2 square. Further simplification will say f1 square plus f2 square must be equal to mu square m square g square. Now then after, what we can do, we can put the values of f1 and f2. When we do so, then we'll find m will getting cancelled from both the side, so it will be having like this: v square by r whole square plus at square must be equal to mu square g square. If you look carefully, then first option will not match, second option will not match, third option is going to match. So third is going to be correct response. Since it's multi correct possibility, so we need to check the fourth one as well. Fourth one says the force of friction makes an angle this with the direction of motion at the point of slip. So net friction at this point will be what that is trying to ask. So net friction is going to be in this direction, resultant of these two, and how much the angle this makes from the velocity motion direction. That means velocity, let's call this angle to be theta. So we can say tan theta. If I write over here, so we will write tan theta is equal to the friction, which is f1 divided by f2. Now we know f1 and f2, we need to simply divide them. If we are going to divide, that becomes v square upon r at. So theta must be equal to tan inverse v square divided by r into at. That was it says. So tan inverse v square upon at into r, that means this is the direction which says correctly, hence we will mark this as well. So C and D will become the right responses. Now question number second, which says a particle of mass m describes circular path of radius r. Its radial or normal or centripetal acceleration depends on time as this, where k is a positive constant. Then we need to answer. So again, this is a circular motion, so we can have a circle like this,
and a particle moves on this, let's say that's a particle, and centripetal acceleration or radial acceleration or normal acceleration is known to us this time. Let's say it moves with velocity v. So this AR, we know this AR is going to be written as v square by r, and that value is given as a kt square. Point is, from here we can find out the velocity or speed, you can say. That will be under root kr into t. You just multiply by r this side and then take square root both sides, so it will be this. That says velocity or speed is proportional to time. That means its velocity speed is changing over the time. That means it also has tangential acceleration. Now it says at any point of time, force acting on the particle is going to be what? So we know the force is mass into acceleration. So one acceleration we know. We need to see about the tangential acceleration. We know the tangential acceleration is rate of change of speed over time. So that's a speed and that's also speed. So we differentiate it. So that comes out to be under root kr. We also know that tangential acceleration and radial acceleration, they are perpendicular to each other. So net acceleration is going to be under root ac square, that is ar square plus at square. If we square this and this together and add up, so we will get the total acceleration. That's going to be under root ar square means k square t raised to power 4 plus at square means kr. Now if we are looking at the net force, so net force must be mass into net acceleration. So we just multiply this with mass, we will get the net force acting. And let's check whether the same number expression is written. M then square root kr plus k square t raised to power 4. Yes, that's perfectly matching. So A will become right response. Now let's come to the option B, which is power developed at any time is going to be mkrt. Now we know power is going to be force dot velocity. So force will have one component in the tangential direction, one component in the radial direction, and we need to do the dot with the velocity which is in the tangential direction. We know in dot product, perpendicular components or perpendicular vectors dot product becomes 0. So radial component will not provide any power. So all the power must be coming from the tangential. So we can say power produced is going to be equal to tangential force into velocity. So this came after doing proper dot product, and the v dot ar becomes 0, v dot at will survive. So that will be like m a tangential into v. Now do we know a tangential? Yes, that's under root kr. So that turned out to be m under root kr into v. V we have calculated, that's under root kr into t. So that under root kr into t. When you simplify, kr under root is twice, so that will be simply kr into t. And that's written mkrt, so that's correct. So B is also correct. Then it says power developed at any time as this number. No. If B is correct, then C cannot be. Tangential acceleration is also varying. See the tangential acceleration that came out to be under root kr. K is a positive constant, r is the radius, which is a fixed. So we will say this is not varying, rather tangential acceleration is a constant, and the radial or normal or centripetal acceleration is varying with time as t square. So A and B are the perfect response for second question. Question number 3. This should be D as well. So it says in elastic collision between two particles, which statement is going to be correct? तो अपने को correct statement identify करना है. Total kinetic energy of the system is always conserved. No, that's not true, because we know during the collision velocity decreases or something like that. Reformation, then deformation, or पहले deformation then reformation. So you know कि kinetic energy conserved नहीं रहती है. So A को mark नहीं करेंगे. फिर बोलता है the kinetic energy of the system before collision is equal to the kinetic energy of the system after collision. Yes, that's perfectly true for the case of elastic collisions. So B को mark कर दोगे. Statement C is missing over here. That says linear momentum conserve होता है. Yes, that's a conserve. Statement D says mechanical energy of the system before and after the collision is equal.
mechanical energy of the system before and after the collision is equal. Yes, you know, kinetic energy वापस आ जाती है पूरा, यानी that means complete reformation होता है. So kinetic restore हो जाता है, potential restore हो जाता है, तो total mechanical energy restore हो जाता है elastic collisions में. फिर लिखता है but kinetic energy of the system is not always conserved. Yes, we just explained it. It is conserved only and before and after the collision. Yes, so that's also true. So finally we are getting एक गलत है, बी सी डी सही स्टेटमेंट्स हैं, तो बी और सी और डी को मार्क कर देंगे. सी इज मिसिंग, विच इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. दैट्स क्वाइट इजी. क्वेश्चन नंबर 4. It says a ball of mass 1 kg is thrown up with 4 meter per second. Another 2 kg ball is released from a height as shown in the figure. So ये बॉडी नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, कोलाइट वगैरह हो सकता है और बहुत कुछ है. क्या पूछता है? इट्स ए सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉल्स कम्स डाउन विद एक्सेलरेशन. सो अपने को सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है. तो फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन है जी, सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन है जी. सो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है m1 a1 which is going to be basically g plus m2 a2 is also g with direction divided by m1 plus m2. When you simplify, this comes out to be g. That means center of mass का भी acceleration g रहेगा. और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर सभी particles का acceleration सेम है तो center of mass का भी वही रहता है, तो डायरेक्टली भी बोला जा सकता था. So center of mass be moving with the acceleration g downward. जबकि ये g/3 बोलता है तो a करेक्ट नहीं है. फिर बोलता है center of mass first moves up then comes down. It should be comes. सो सेंटर ऑफ मास कहाँ मूव करता है? मूव करने का मतलब वेलोसिटी चाहिए. सो हम लोग जानते हैं वी सी एम इज गोइंग टू बी इक्वल टू m1. दैट मीन्स दिस 1 kg velocity is 4 in j cap direction plus 2 kg velocity is 0 in j cap direction divided by 4 plus 2. Point is this answer is going to be in j cap direction, positive j cap direction. That means center of mass will be somewhere here initially, then it goes up initially and it is moving downwards. It will be having acceleration downwards, so it has to go up and then come down. That's what it says. So first moves up, yes, then comes down, yes. So B is correct. Acceleration of the center of mass is g downward. Yeah, that's what we have talked. Center of mass of the two balls remains stationary. No, there's a velocity of center of mass initially and there's an acceleration downwards, so it has to move. Ultimately center of mass ground पर आ जाएगा जब दोनों particles ground पर आ जाएंगे. So center of mass का path कैसा होगा? किसी point से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आ जाएगा. So that will be the path of center of mass. जबकि अलग अलग particles का अलग अलग story हो सकता है. ये अपना ऐसा जाएगा, ये इसका इस तरह से path रहेगा. Question number next, which is 5th. ये बोलता है कि एक बॉल प्रोजेक्टेड एट स्पीड गिवन टू अस, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इज नोन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नोन. वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल अप टू थर्ड कोलिजन. सो वी नो कि किस तरह से हैंडल करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को. सो यू से कि अगर ये हमारे पाथ है और हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, एक पार्टिकल को हम इस तरह से थ्रो करते हैं, सो दिस विल बी फॉलोइंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन. Then again it will be bouncing like this, then again it will be bouncing like this and it will keep on moving. और अगर अपने को u और थीटा नोन है, सो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि this comes out to be r, that is range, obvious result. Then we have done in the lectures that it comes out to be er, then this comes out to be e square r and so on. सो अगर आपने a से प्रोजेक्ट किया तो b पर पहली बार लैंड करेगा, b से c सेकेंड टाइम जाएगा, फिर c से d थर्ड टाइम जाएगा. सो फर्स्ट कोलिजन बी पर, सेकंड सी पर, थर्ड डी पर. इसने पूछा क्या है? इट इज आस्किंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल अप टू थर्ड कोलिजन. दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड डी पॉइंट तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट अपने को लगना है यहाँ से यहाँ तक. सो क्या इसको हम बता सकते हैं? कैन वी से कि जो एक्स की वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी आर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस ई स्क्वायर. Now we do know E value which is 1/3. So ये नंबर अपने को पता चल जाएगा. R कैलकुलेट करना है is quite easy. So R के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है u square sin 2 theta divided by g. If you solve you will find this A option to be correct.
फिर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड आफ्टर फर्स्ट कोलिशन। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद ये जो हाइट होगी ये अपने को पता करना है। लेट्स कॉल इट टू बी H1। फर्स्ट कोलिजन के बाद ये अपना H था। H और H1 में क्या रिलेशन आएगा दैट वी कैन फाइंड आउट। हम लोग जानते हैं कि जो वर्टिकल हाइट होती है ना, मैक्सिमम हाइट, ये वर्टिकल कंपोनेंट से होती है। तो ये इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट रहा होगा U sin थीटा, और कोलिजन के बाद जब सेकेंड टाइम आएगा तो ये बनेगा EU sin थीटा। अब जानते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट अफेक्ट करता है। सो वी विल राइट कि H की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, और H1 जो आएगा दैट विल बी E स्क्वायर U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। इन केस यू वांट यू कैन डिवाइड द टू। सो आप दोनों को डिवाइड करोगे तो H अपॉन H1 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 1 अपॉन E स्क्वायर। दैट मीन्स H1 मस्ट बी इक्वल टू E स्क्वायर टाइम्स मैक्स हाइट फॉर द फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस में अब देखो जो रेंज आता है ना वो E से मल्टीप्लाई होता है, और जो हाइट आता है वो E स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है। ऑब्वियस है, क्योंकि रेंज में अपने को दोनों कंपोनेंट लगते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनअफेक्टेड होता है। हाइट में केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर जाता है, इसलिए E स्क्वायर आता है। सो अब कैपिटल H हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट जा रहा है न्यूमेरिकल आंसर का। सो H की जो वैल्यू है दैट इज U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री डिवाइड बाई 2G। U के प्लेस पर हम लोग रखेंगे 10, स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, साइन 30 इज हाफ, स्क्वायर करोगे 1/4, 2G की वैल्यू 10 पकड़ लेते हैं, सो दैट कम्स आउट टू बी 20, सो दैट्स 5/4। 5/4 इसका टोटल हाइट आने वाला है। तो H1 कितना आ जाएगा, H1 की वैल्यू आनी चाहिए 5/4 इंटू E स्क्वायर विच इज़ 1/9। इस नंबर को एक बार चेक करते हैं कितना है, तो ये 1.25/9। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 0.1 और समथिंग से स्टार्ट होगा, 0.4 नहीं आएगा। सो यू कैन चेक द कैलकुलेशन एंड इट फाउंड आउट टू बी दैट मैक्सिमम हाइट अटेंड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। फर्स्ट कोलिजन के बाद 0.4 नहीं आता है, वो 1.25/9 आता है। सो ये जो बी ऑप्शन है इट हैज़ टू बी करेक्टेड। सो एज पर दिस कैलकुलेशन बी डज नॉट सूट। A is correct, yes. You can check this value, it comes out to be. इसके बाद आपसे अगला ऑप्शन बोलता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन कंजर्व। नो, ई की वैल्यू 1 नहीं है, सो इन इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी वेस्ट होता है। टोटल एनर्जी डू नॉट रिमेन कंजर्व, यस। सो हम डी को भी मार्क कर देंगे। सो ए एंड डी शुड बी द राइट ऑफ रिस्पॉन्सेज। Question number 6, it says 4 identical rods, each of mass m, length L, are joined to form a rigid square frame. The frame lies in XY plane and its center at the origin and sides parallel to the XY axis. If its moment of inertia we need to talk. So एक पिक्चर बना लेते हैं कुछ ऐसा, और कोऑर्डिनेट एक्सिस भी। कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसा बोल रहा है कि ये सेंटर इसका ओरिजिन बनना है, सम सॉर्ट ऑफ दिस। सो यू कैन थिंक ऑफ ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन पर हो गया, और सभी का मास m है, लेंथ l है। ऑल पोर्शंस है मास m, लेंथ l। सो 4 रॉड्स हो गए अपने पास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस से पूछेगा उसको अपने को बताने का, जैसे एक्स एक्सिस से पूछा। सो अब जब एक्स एक्सिस, इसका नाम कर देते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये फर्स्ट रॉड है, ये सेकेंड रॉड है, इसका नाम थर्ड है, इसका नाम फोर्थ है। सो हम लोग उसको I1 I2 I3 करके बोल करके अपना आंसर बता सकते हैं ना। अगर हम लोगों को एक्स एक्सिस से निकालना है, सो लेट्स से हम लोग IX कैलकुलेट करते हैं। सो एक्स एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा फर्स्ट रॉड का, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, सभी गाइड करना है। सो फर्स्ट रॉड अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो उसके मिड से जा रही है एक्सिस, और उसका जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं दैट इज ml²/12। सेकेंड को अगर आप वॉच करोगे तो सेकेंड इसके पैरेलल जा रहा है, ये डिस्टेंस लगेगी जो कि L/2 हो जाएगी। सो ऑल मास इज एट अ डिस्टेंस L/2, सो दैट्स L/2, सो m इंटू L/2²। थर्ड एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट, सो आप चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसको अलग से भी लिखोगे तब भी चलेगा। सो आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग इट बाई 2 बिकॉज रिपीट हो गया। और फोर्थ का इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको चेक करना कितना आंसर आ रहा है, तो हम लोग उसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। ml² को बाहर ले लो, ये 1/6 आ जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा। 1/6 + 1/2।
इसको आप 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/6 आ जाएगा। 4/6 को हम लोग 2/3 लिख सकते हैं ml²। चेक करते हैं क्या वही बोल रहा है, यस, इसका मतलब ए को मार्क कर देंगे। सिमिलरली हम वाई एक्सिस से भी निकाल सकते हैं। उसने क्या बोला है, जेड एक्सिस से बताइए। तो अगर अपने को आई जेड कैलकुलेट करना हो जेड एक्सिस से, तो जेड एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी, ओ से पास करेगा, स्क्रीन के परपेंडिकुलर जाएगा। आप देखोगे जितना आई एक्स है उतना ही आई वाई है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल अगर आप आई वाई निकालेंगे तो सेम नंबर आने वाला है। तो कैन बी से कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं और बोलेंगे आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आई जेड हो जाएगा, सो इसका डबल हो जाएगा बेसिकली। सो दैट इज गोइंग टू बी 4/3 ml²। चेक कीजिए 4/3 बोल रहा है, यस, इसको भी करेक्ट कर देंगे। फिर आपसे बोल रहा है कि एन एक्सिस पैरेलल टू जेड एक्सिस पासिंग थ्रू द कॉर्नर। सो लेट से कि इस कॉर्नर से जाने वाली एक्सिस अपने को पकड़नी है। सो ये डिस्टेंस अपने को डी लगेगी। सो वो जो सी ऑप्शन के लिए अपने को लगाना है, लेट से ये ए पॉइंट था, तो आई अबाउट ए इज गोइंग टू बी आई जेड, जो कि सी एम का काम करेगी md²। डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक बात का ख्याल रखना होगा, यहाँ पर एम का मतलब टोटल मास आएगा। ये एक इस इशू का पॉइंट है, वहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो टोटल मास कितना होगा, m 4m। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक 4m इंटू d²। टोटल मास इंटू द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। और डी की वैल्यू हम लोग कितना लिखने वाले हैं, L/2, क्योंकि L/2 टोटल होगा, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। इसको आप रखोगे, आई जेड रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अपने को ये मिल जाएगा। रिमेंबर दिस टोटल मास, क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद वन साइड इज, एक कोई साइड पकड़ना अपने को। लेट से ये साइड पकड़ते हैं, तो अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका खुद का तो 0 हो जाएगा। ml²/3 ml²/3 2 बार आएगा और ये ml² हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक 2/3 ml² प्लस 1, दैट इज 5/3 आ जाना चाहिए ml² पे। चेक कर लेते हैं कि उसका आंसर 5/3 है क्या। सो इफ़ यू लुक दैट इट्स 5/3, सो ये भी करेक्ट हो गया। सो यू फाइंड कि इसके सभी ऑप्शंस करेक्ट हो जा रहे हैं, ये भी करेक्ट निकलेगा, और इसीलिए इसका ABCD करके रिस्पॉन्स दिया गया है। सो दैट्स क्वेश्चन 6। सो दीज वर द मल्टीपल करेक्ट टाइप्स, जिसमें एक से ज़्यादा करेक्ट हो रहे थे। नाउ वी विल हैव अ सिंगल करेक्ट टाइप। 7th भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इट सेज कि एक पार्टिकल है, हालांकि ये बहुत बड़ा दिखाया गया, कंसीडर टू बी वेरी स्मॉल, और उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √gr दिया गया लो वेस्ट पॉइंट पर, और ये स्फीयर का पार्ट है कोई, उसका रेडियस r दिया गया। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द हेमिस्फीयर इज गिवन एज अ 0.5। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वी नीड टू आइडेंटिफाई। नाउ यू सी, इस मोमेंट पर इस पर क्या एक्सेलरेशन आएगा वो इसके फोर्सेस से पता चलेगा। लेकिन एक बात तो गारंटीड है कि ये सर्कल पे चलेगा। सो जब कभी कोई पार्टिकल सर्कल पे चलता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना कंपलसरी होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, आप इसका एबीडी बनाओगे, व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, देन यू विल फाइंड देयर इज गोइंग टू बी mg फोर्स एक्टिंग, देयर इज गोइंग टू बी नॉर्मल फोर्स एक्टिंग, देयर इज गोइंग टू बी फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड सिंस ये सर्कल पे चल रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा जिसको हम mv²/r लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको हम बाहर की तरफ दिखाते हैं और बेसिकली वो सेंट्रीपिटल ही होता है। पॉइंट इज कि इस रेडियल डायरेक्शन में तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, बल्कि ये फ्रिक्शन भी अपना एक एक्सेलरेशन लेकर के आएगा। तो फ्रिक्शन की वजह से एक एक्सेलरेशन इधर आएगा, सो दैट विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो वी कैन से देयर हैज़ टू बी बोथ एक्सेलरेशन एक्टिंग साइमल्टेनियसली। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। और वही आपसे पूछता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या अपवर्ड आएगी, नो, वी विल से नो। क्या इस हॉरिजॉन्टल रहेगी, नो। क्या इस डायरेक्शन में जाएगी, नो। क्या इस डायरेक्शन में जाएगी, यस। सो सी ऑप्शन आप वैसे भी मार्क कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम बोलेंगे इसकी वैल्यू आएगी AC² + AT²। चेक भी कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड मैच कर रहा है, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक करेक्ट होना है, 3 करेक्ट नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली मार्क कर सकते हो 100%। और बट इन केस इफ यू वांट टू वेरीफाई देन यू कैन वेरीफाई लाइक दिस कि AC² और AT² के सम के बराबर आएगा। अब AT कितना आएगा, ये भी मैग्नीट्यूड मैं निकाल देता हूँ बिकॉज दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग वन। AC की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। AC की वैल्यू आती है V0² r। V0 की वैल्यू अपने को ये दी गई है, उसका स्क्वायर करके r बोलेंगे तो ये g के बराबर आ जाएगी। फिर पॉइंट आएगा कि AT की वैल्यू कितनी आएगी, टेंजेंशियल, तो दैट विल बी F/,
दैट विल बी बेसिकली हाउ वी कैन से टेंजेंशियल वन, सिंस ये इसे स्लाइड करने वाला है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो F/m आ जाएगा हॉरिजॉन्टल से। F की वैल्यू आएगी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाई एम, नॉर्मल रिएक्शन, नॉट राइट mg, अदरवाइज यू विल बी रॉन्ग। नॉर्मल रिएक्शन कैसे पता करेंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अपने को पता है mg प्लस mv0 स्क्वायर बाई आर। v0 स्क्वायर बाई आर की वैल्यू g है तो रख दोगे तो ये बन जाएगा 2mg, तो ये आ जाएगा म्यू इंटू 2mg डिवाइड बाई एम, दैट विल बी, इट विल बी 2μg। म्यू की वैल्यू हाफ दी गई है, सो दैट विल बी g। सो AT भी g आया और AC भी g आया, तो टोटल कितना आएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, सो हम बोलेंगे A की वैल्यू g√2 आ जाएगी। क्या अपने को √2g दिया गया है, इसमें रूट केवल यहाँ तक रहना था, सो √2 इंटू जी आ जाएगा। और ये अपना टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, अपने को दोनों पता चल गया, 10 डन। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से एक लाइट पार्टिकल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है और एक वेरी हैवी ब्लॉक के साथ वो कोलाइड करता है सेम डायरेक्शन में जो कि जा रहा था। वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन पार्टिकल के साथ क्या होने वाला है? सो आपको याद होगा क्लासरूम में हम लोगों ने किया था, एक हैवी वॉल के साथ एक पार्टिकल आके कोलाइड करता है एंड देन वो उसके साथ क्या चल रहा होता है। तो हम लोगों ने पॉइंट कंक्लूड किया था कि जब कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा देन वी विल से कि पार्टिकल की वेलोसिटी लेट्स से v है, और लेकिन जो हैवी बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड करती है, जस्ट लाइक एक आपकी बॉल है अर्थ से कोलाइड करती है, तो अर्थ की वेलोसिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि बॉल की वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ता है। सो हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम बोलते हैं कि अगर ऐसा चल रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा देते हैं एंड देन वी कम्स आउट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड यू विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 12 - 10, ये इसके बराबर आएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आएगा 1 बिकॉज इट्स अ इलास्टिक कोलिजन। देन इट्स ओवर, 10 - v मस्ट बी इक्वल टू 2, so v must be equal to 8 meter per second. Now you started with this v and it came out to be positive, that means the velocity that you have taken is correct, so it has to be 8 meter per second in the direction in which it was moving earlier. So ये बोलता है कि 2 मीटर पर सेकेंड से ओरिजिनल डायरेक्शन में, आप बोलोगे नहीं, 8 मीटर पर सेकेंड से ओरिजिनल डायरेक्शन में, यस। 8 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में, नो, इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। 12 से जाएगा, नो, सो बी विल बी द राइट रिस्पॉन्स। Then there is a question number 9 which says 5 identical balls each of mass m and radius r, और वो इस स्ट्रिंग में या फिर रॉड बेस तरह से लगाए गए हैं। फिर इनमें से आप क्या करते हो, एक पार्टिकल को या एक बॉल को वेलोसिटी देते हो v, और आपसे पूछते हैं कि एवरेज फोर्स कितना एक्ट करता है किसी सपोर्ट में। वी हैड अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन इन द लेक्चर इफ यू रिमेंबर। सो इस पर कितना फोर्स लगेगा अपने को देखना होगा। यहाँ पर मोमेंटम चेंज कितना हुआ है पर यूनिट टाइम, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट्स एवरेज फोर्स। नाउ आप देखोगे जब ये बॉल इसे हिट करेगी तो v वेलोसिटी से हिट करेगी, कैसे? क्योंकि एक ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, और जब कभी आइडेंटिकल पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन करते हैं, इसने बोला कि सारे कोलिजन्स आर इलास्टिक, सो वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। तो ये v वेलोसिटी से पहले चल रहा होगा, फिर इसको वेलोसिटी दिया होगा, फिर इसको दिया होगा, इस तरह से ट्रांसफर होते हुए लास्ट पार्टिकल पर गया होगा, लास्ट पार्टिकल इसे हिट करेगा जा करके, सो mv का मोमेंटम से जाएगा। इलास्टिक कोलिजन है तो वो mv वेलोसिटी से वापस आएगा। सो पॉइंट इसकी चेंज इन मोमेंटम कितना रहा होगा, तो 2mv रहा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। और इनिशियली हम लोग लिखेंगे mv i कैप एंड फाइनली लिखेंगे -mv i कैप, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2mv का आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड्स, राइट। डेल्टा टी कितना होगा, दैट मीन्स इस एक बार कोलाइड होने के बाद फिर इस पर कब फोर्स लगने वाला है, तो उसके बाद ये इससे कोलाइड करेगा, फिर ये आपस में 5 कोलाइड करेंगे, फिर इससे कोलिजन होगा, फिर ये रिटर्न चलेगा। आप देखोगे कि इसको ऐसा समझ सकते हो कि पार्टिकल्स बदल रहे हैं लेकिन हर मोमेंट पर v वेलोसिटी से आप इधर जा रहे हो और v वेलोसिटी से इधर आ रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल टाइम लगा डेल्टा टी जिसकी अपने को ज़रूरत है, कैन वी से कि दैट हैज़ टू बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाई टोटल स्पीड, और द स्पीड यू हैव मेंटेन्ड इज v स्पीड से आप गए, v स्पीड से वापस आए। सो जाने और वापस आने का टोटल अपने को लेंथ चाहिए, कितना ट्रैवल करेगा, कितना लेंथ टोटल ट्रैवल्ड हुआ होगा ये पता कर लेते हैं। ये गैप कितना दिया गया, l। अगर ये पार्टिकल्स 0 साइज़ के होते तो हम बोलते कि l डिस्टेंस गया, l वापस आ गया, लेकिन इनका अपना खुद का साइज़ है,
तो आप देखोगे कि अगर इनको सबको पास पास रखोगे ना तो एक कवर कर रहा होगा 2r डिस्टेंस, दूसरा कवर कर रहा होगा 2r डिस्टेंस, तो टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाइड होगा, लेंथ ऑक्यूपाइड होगा. सो कैन वी से 5 इंटू 2r. सो जो x आने वाला है वो l में से 5 इंटू 2r कम कर देंगे. ये अपने को समझा हो तो काम हो गया, क्योंकि अपने पास जो अवेलेबल स्पेस है वो l है और उसमें बीड्स हैं. तो अगर एक बीड यहाँ से चलती है ये, तो ये कहाँ तक जा सकती है. अगर सबको एक साथ अकोमोलेट कर लो तो यहाँ तक उनके डायमीटर्स कवर कर जाएंगे और जितना स्पेस होगा उतना ही ट्रैवलिंग हो पाएगी. तो टोटल डायमीटर या टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड हम लोगों ने पकड़ा और वो टोटल कितना आ जाएगा, 5 बीड्स हैं और 2r डायमीटर रहा होगा. So that's done. Then after we will say it's going to be like L minus 10R divided by V. इस t को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. So अच्छा, ये तो मैंने जो बोला है वो एक साइड का था. फिर अपने को वापस भी आना है तो अपने को 2 से मल्टीप्लाई भी करने का. 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आपको जाना भी है वापस भी आना है. सो इसके बाद इसको आप प्लेस कर दीजिए तो ये बनेगा 2 टाइम्स L माइनस 10R डिवाइडेड बाई V. जो हम लोगों ने क्लास में पिक किया था उसमें R इग्नोर था और एक ही बीट थी, तो इसलिए हम लोगों ने टोटल स्पेस को काउंट किया हुआ था. 2 से 2 कैंसिल हो गया. दैट कम्स आउट टू बी mv स्क्वायर डिवाइड बाई L माइनस 10R. दैट शुड बी द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सपोर्ट. कोई भी सपोर्ट ले लो आप, इस सपोर्ट पे निकालोगे तब भी वही आएगा, इस सपोर्ट पे निकालोगे तब भी वही आएगा. सो ऐसा ऑप्शन आपको बी पार्ट में दिख रहा है, आप इसको करेक्ट मानेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 वॉज क्वाइट ईजी. ये बोलता है कि अगर अपने पास एक बॉडी है जो स्पिन कर रहा है और उसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है पॉइंट आउट ऑफ द पेज, अगर ये पेज से बाहर आ रहा है ऐसा एंगुलर वेलोसिटी, तो वो कैसा स्पिन कर रहा होगा. हम लोग जानते हैं बाहर आ रहा है तो ऐसा स्पिन कर रहा होगा. जब वो काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो आउटवर्ड आता है, स्टेटमेंट आपके नोटबुक में लिखा होगा, और क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो ओमेगा इनवर्ड जाता है. तो दैट्स रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और उसके सेंस ऑफ रोटेशन से. सो काउंटर क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट्स व्हाट वी कैन से. क्वेश्चन नंबर 11. इट सेज कि एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया वी नॉट वेलोसिटी से और थीटा एंगल पर. सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज कर रहा है. इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यस वी नो द रेडियस ऑफ कर्वेचर एज वेल. एट द टॉप पॉइंट, कहाँ पर पूछ रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर. हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल के टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वी नॉट कॉस थीटा होती है, और एक्सेलरेशन ग्रेविटी होता है वर्टिकली डाउन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जिसकी अपने को ज़रूरत होती है. सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेट्स उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर लिखते हैं, जिसको हम लोग रो भी लिखते थे. तो ये आता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी विच इज वी नॉट कॉस स्क्वायर, वी नॉट कॉस थीटा, उसके स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाई एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर दैट इज जी. सो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया. इसने बोला कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप इक्वल्स दिस इक्वल्स हाफ ऑफ द मैक्स हाइट दस h/2. सो ऑफकोर्स ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल हो गया और यही मैक्स हाइट होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्स हाइट का हाफ हो जाता है. फिर अपने को कुछ पता करना है, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये आएगा वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू हाफ. तो अपने को पता है, एच का फॉर्मूला भी पता होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g. सिंप्लीफाई करोगे तो वी नॉट स्क्वायर बाई जी कैंसिल आउट हो जा रहा है और अपने को यहाँ से जो दिख रहा है वो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 नज़र आ रहा है. कॉस को इधर ले आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 2 और 2 मिलकर के 4 रहा होगा, तो जो कि राइट इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया होगा, तो हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया. सो अपने को tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 मिल गई है. ये आपसे बोलता है सेक स्क्वायर थीटा बताइए, तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो 1 प्लस 4 लीड्स टू 5, दैट्स आवर आंसर. सो 5 विल बी द राइट रिस्पॉन्स. सो इस पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रोजेक्टाइल, इनका अब यूज आ गया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज 12. इट सेज अ पेंडुलम ऑफ लेंथ गिवन. सो ये लेंथ का पेंडुलम है और हॉरिजॉन्टल से रिलीज करते हैं स्ट्रिंग. एक यहाँ पे पेज लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है, आई मीन ब्लॉकेज है. तो जब ये स्ट्रिंग ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, इसके बाद क्या होगा कि फिर इसके बाद ये ऐसा चलेगा. दैट मीन्स ये जो पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग होगा वो फिक्स हो जाएगा और ये नया रेडियस बन जाएगा.
सो अपने को क्या करना है, अपने को ये पता करना है कि व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डी. डी इज़ दिस डिस्टेंस. ये कम से कम कितना होना चाहिए सो दैट कि हमेशा स्ट्रिंग टॉट रहे. अब ये वर्टिकल सर्कल पे जा रहा है, तो वर्टिकल सर्कल पे जा रहा है तो यहाँ पर लूज होने के चांसेस हैं. और हम लोग जानते हैं कि अगर ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करना है तो ये जो रेडियस नया निकल के आ रहा है, कैन वी फाइंड आउट दिस नया रेडियस, इज इट गोइंग टू बी एल माइनस डी, या फिर इसको भी आर लिख देते हैं. तो यहाँ पर अपने को कितना वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट आता है कंप्लीट सर्कल लगाने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं √5 g r आना चाहिए. आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी एल माइनस डी. अच्छा, अगर हम लोग इधर वाला पोर्शन स्टडी करते हैं, यहाँ से रिलीज किया गया यहाँ पर आया तो इफेक्टिवली ये कितना डिस्टेंस नीचे आया, एल. सो ये वी नॉट हुआ कितना होगा वेलोसिटी, √2gl. काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन या फिर एनर्जी कंजर्वेशन से लगा सकते हैं यहाँ पर. पार्टिकल इफेक्टिवली एच डिस्टेंस नीचे आया तो या फिर वर्क एनर्जी इधर हम बोलो, वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो दैट विल गिव दिस आंसर. अब वी से कि दोनों को बराबर होने का, सब दोनों को बराबर करेंगे तो आएगा 2gl मस्ट बी इक्वल टू 5gr. आर को l माइनस डी बोल देंगे, जी से जी कैंसिल हो गया. सो दैट इज ट्वाइस l इज इक्वल टू 5l माइनस 5d. सो ये बनेगा 3l इज इक्वल टू 5d. दैट मीन्स d मस्ट बी इक्वल टू 3l बाई 5. 3 is 3, l is 15, that is 5. So that will be 3 into 3 9 सेंटीमीटर. ये भी सेंटीमीटर में था तो अपना आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, उसने सेंटीमीटर में पूछा भी है. सो 9 सेंटीमीटर विल बिकम अवर राइट रिस्पॉन्स. सो एनर्जी कंजर्वेशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंबाइंड एग्जाम्पल. 13th, ये बोलते हैं एक फोर्स लगाया गया है और अपने को रेशियो ऑफ टॉर्क कैलकुलेट करना है ए के अबाउट. एक बार और दूसरा बार वाई एक्सिस के अबाउट. तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये ए पॉइंट है, बी पर फोर्स लग रहा है तो इस डिस्टेंस को हम लोग आर पकड़ सकते हैं. तो टॉर्क अबाउट ए कैलकुलेट करेंगे. तो हम लोग जानते हैं टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट आर क्रॉस एफ होता है. आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर को हम लोग लिख सकते हैं, लेट्स उसकी लेंथ एल है, इसको एल लेंथ मान लेते हैं. तो ये बनेगा एल आई कैप क्रॉस एफ. एफ की वैल्यू अपने को पता है 3i कैप प्लस 10j कैप प्लस 5k कैप. दैट्स हाउ वी हैव अंडरस्टूड. क्रॉस प्रोडक्ट, एल को भी बाहर रखते हैं, एल कैंसिल हो जाएगा बिकॉज अपने को रेशियो निकालना है. आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा. आई क्रॉस जे जब आप करोगे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा. सो दैट्स 10k कैप. व्हेन यू आर गोइंग टू से आई क्रॉस के, दैट्स माइनस जे, सो दैट विल बी माइनस 5j कैप. सो दैट्स टॉर्क अबाउट ए पॉइंट. फिर अपने को टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस निकालना है. यू रिमेंबर कि हम लोगों ने किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए क्या बोला था कि अगर अपने को किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो उस एक्सिस पर लाई करने वाला कोई पॉइंट पकड़ो. ये पॉइंट उसी पर लाई कर रहा है और उसको उसकी एक्सिस से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जे कैप से आप मल्टीप्लाई कर दोगे. जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो अपने को पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यू आ जा रही है, इसके जे कैप से डॉट करोगे तो ये बनेगा एल. जे और के का डॉट 0 हो जाएगा, -5 आ जाएगा. सिंस हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मॉड लगा के रख सकते हैं, तो ये 5l आ जाएगा. और अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश की तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी l √10² प्लस 5². अब आपसे बोलता है कि टॉर्क अबाउट ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस के मैग्नीट्यूड को बताइए. सो ए के अबाउट अपने को मिला l √10² प्लस 5² दैट इज √125 डिवाइड बाई दैट वॉज 5l. और अगर आप सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल रियलाइज कि एल से एल कैंसिल हो गया. ये आ रहा 5√5 डिवाइड बाई 5 दैट इज √5. और इस यही आंसर अपने को √n बताया गया, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी. सो दिस बेसिकली ट्राइज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टॉर्क अबाउट अ पॉइंट एंड द टॉर्क अबाउट एक्सिस. क्वेश्चन नंबर 14, दैट्स आल्सो अ गुड वन. ये बोलता है एक फोर्स लगा करके इस रॉड को, जो कि होमोजेनियस है, यूनिफॉर्म है, आप इसको मूव कराते हो कि ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन करता है. अगर ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन करता है तो अपने को थीटा के बारे में कुछ बोलना है. तो हम लोग इसका एफ बना सकते हैं. जब आप एफ बनाओगे तो आप पाओगे कि इधर फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कि एक एडिशनल फोर्स है. हम सेंटर ऑफ मास पे चले जाएंगे. सो आप सेंटर ऑफ मास से देखोगे तो सी पकड़ लेते हैं. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये बॉडी सीधा ट्रांसलेट कर रहा है तो ये रोटेट नहीं करेगा. रोटेट नहीं करेगा तो टॉर्क अबाउट सी निकालेंगे, उसको 0 क्लेम कर देंगे.
नाउ टॉक अबाउट सी, कौन कौन सा दे रहा होगा, एक फोर्स अभी यहाँ पे नहीं दिखा है जो कि नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो अब देखोगे सी के अबाउट ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसा रोटेट कराने की कोशिश करेगा, एफ इस तरह से रोटेट कराने की कोशिश करेगा। अगर दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं देन यूल फाइंड कि ये ट्रांसलेट कर सकता है प्योरली। लेट्स इसकी लेंथ एल थी, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो l/2 आ जाएगा। अगर ये l/2 हुआ तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, नॉर्मल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो यू विल फाइंड कि ये जो डिस्टेंस बनेगी दैट इज गोइंग टू बी l/2 cos थीटा, और ये वर्टिकल डिस्टेंस बनेगी l/2 sin थीटा। जब हम लोग नॉर्मल रेडिएशन का टॉर्क निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगी, जब f का टॉर्क निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगी। सो कैन वी से कि n इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम c is going to be l/2 cosine theta. This must be balanced by f into l/2 sin theta. l/2 cancel हो गया, तो from here we are getting n must be equal to f into sin theta by cos theta, that is called tan theta. Now वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये मूव कर नहीं रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंसिंग mg, क्योंकि और कोई फोर्स है नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अपने को पता चला कि जो tan थीटा है बेसिकली वो n/f है, दैट मीन्स mg/f है। डू वी नो mg? m इज गिवन एज 3, g is 10, तो दैट्स 30, फोर्स इज 40, सो दैट्स 3/4। सो जब आप ऐसा करोगे तो थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी 37 डिग्री। tan थीटा 3/4 37 डिग्री पर होता है। आपसे क्या पूछता है? वैल्यू ऑफ थीटा माइनस 30, 37 माइनस 30 इज गोइंग टू बी 7 डिग्री, तो 7 अपना आंसर हो जाएगा। So you just balance the torque and get your answer. Further, question number 15. Question number 15 says कि एक यूनिफॉर्म रॉड है और उसको यहाँ पे हिंज किया गया है, स्ट्रिंग से टाइट किया गया है, एक ब्लॉक है, बाकी सारी कहानी आपको बताई गई है। आपसे बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना जस्ट आफ्टर रिलीज फ्रॉम द पोजीशन शोन। अब देखोगे कि रिलीज करने के बाद ये इधर जाएगा, तो ये स्ट्रिंग का या बी पॉइंट इधर जाएगा, और साथ ही साथ यूल फाइंड कि ऐसे रोटेट भी करेगा अल्फा से। लेट्स से ये एक्सेलरेशन ए है मैग्नीट्यूड, तो इसका भी मैग्नीट्यूड ए रहेगा, और रॉड हमारा रोटेट कर रहा होगा, ये रॉड, और ये ट्रांसलेट कर रहा होगा। अगर हम इसको टी टेंशन देते हैं, ये मासलेस पुली है तो इसका भी टेंशन टी रहा होगा। यू रिमेंबर कि अगर ये मासलेस नहीं होता तो हमारे टेंशन्स बदल जाते दोनों साइड के। ब्लॉक की इक्वेशन क्या बनेगी? न्यूटन्स इक्वेशन। इसकी इक्वेशन बनेगी mg, उसका नीचे था, t ऊपर था, दैट मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए। अब इस रॉड के लिए बनाएंगे, रॉड के लिए इक्वेशन। रॉड के लिए आप देखोगे कि इसके सेंटर मास पर एक mg का फोर्स लग रहा होगा, और इस एक्सिस के अबाउट mg इसको ऐसा रोटेट कराना चाहेगा और t इसको ऐसा रोटेट कराना चाहेगा। अल्टीमेटली t डोमिनेट कर रहा है, वही अल्फा लेके आएगा, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। इफेक्टिवली टाउ आएगा टी इंटू द लेंथ, टोटल लेंथ इज एल, माइनस एम जी उसको काउंटर कर रहा होगा इसलिए माइनस एम जी डिवाइड बाई एम जी इंटू l/2, क्योंकि ये l/2 डिस्टेंस पर लगेगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू आई, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द कॉर्नर एक्सिस एंड एक्सिस इज गोइंग टू बी ml²/3 इंटू अल्फा। अब चाहो तो एल से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा t माइनस mg/2 मस्ट बी इक्वल टू m/3 l अल्फा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है तो बी पॉइंट पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो ए आएगा, और ए की वैल्यू आर अल्फा से दी जा सकती है और आर की वैल्यू एल होगी। तो पॉइंट इज कि ए इज इक्वल टू एल अल्फा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एल अल्फा है उसका नाम हम लोग ए लिख सकते हैं, तो ये बनेगा m/3 इंटू ए, सिंस ये था। अब अपने पास इफेक्टिवली एक ये इक्वेशन है और ये एक दूसरी इक्वेशन है, वहाँ से हम लोग t को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो 1 और 2 को आप एडअप कर लीजिए। जैसे आप एडअप करोगे तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा mg माइनस mg/2 मस्ट बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो ये ma है और ये ma/3 है, सो वी कैन राइट इट एज लाइक ma प्लस ma/3। सिंप्लीफाई होने के बाद ये बनता है mg/2 मस्ट बी इक्वल टू 4ma/3। नाउ m तो कैंसिल आउट हो गया, अपने को a लगना है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/8g।
सो एक्सेलरेशन मस्ट बी 3/8g, और ये बोलता है एक्सेलरेशन इज 3g/n. So what n is there? So we say n is has to be 8. That's correct response, right? Question number 16. ये बोलता है कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, और वो इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है. मासेस इनके आपको मेंशन्ड हैं. इनिशियली आप ए को इस तरफ वेलोसिटी देते हो 9 मीटर पर सेकेंड, जिससे ये दोनों कोलाइड करते हैं, इलास्टिकली कोलाइड करते हैं. फिर बी कोलिजन के बाद बी के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी और वो सी से कोलाइड करेगा जा करके. सो ऑल मोशंस स्ट्रेट लाइन पर हो रहे होते हैं. फाइनल स्पीड अपने को बतानी है किसकी, बी की, और ये भी कोलिजन इलास्टिक होना है. सो आप देखोगे कि अगर इसके पास कोई वेलोसिटी वी आया होगा और बी और सी दे हैव द सेम मास एंड द कोलिजन इज इलास्टिक, देन यू नो कि वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं. तो बी विल कम टू द रेस्ट, सी विल बी मूविंग विद द वेलोसिटी वी. अपने को बताना है क्या, अपने को वेलोसिटी ऑफ बी बताना है. सो हम लोग ये से बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी मस्ट बी 0. व्हाई? बिकॉज बी विल अल्टीमेटली कम टू रेस्ट वंस इट कोलाइड्स विद सी, बिकॉज they are having the same mass and collision is head on elastic. So rest आ जाएगा. Question number 17. It says a particle of mass m is made to move with uniform speed along the perimeter of a regular hexagon inscribed in a circle. So it's like कि एक circle है अपने पास, उसके अंदर एक regular hexagon बनाया गया, और लेट्स उसका कुछ पार्ट बना देते हैं. तो आप बोलोगे कि एक ऐसा कुछ पोर्शन रहा होगा रेगुलर हेक्सागन का, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा रहेगा. सिमिलरली इधर भी रहेगा, आगे भी रहेगा, वो हम लोग काउंट कर सकते हैं. या फिर ऐसा बोलो कि ये इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा. पार्टिकल जब यहाँ पर ऐसा जा रहा होगा तो इसके पास ये मोमेंटम होगा, इसके बाद इधर जाएगा. सो यू विल फाइंड कि इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है. अच्छा, ये एंगल कितना आएगा? टोटल एंगल हमारा 2 पाई होता है. हेक्सागन है, 6 में डिवाइड हो गया होगा, तो आप पाओगे कि ये एंगल 2 पाई/6 आ जाएगा. अगर n पोलिनोमियल होता है तो n से डिवाइड कर देते हैं, 6 आ जाएगा. 2 पाई/6 इज गोइंग टू बी पाई/3 विच इज 60 डिग्री, और ये बराबर होते हैं तो ये एंगल भी बराबर होंगे. तो बेसिकली अपने को ये भी पता चल जाएगा कि ये 60 डिग्री है, और ये भी कितना है, 60 डिग्री है. सो आपसे पूछता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. सो अपने को चेंज इन मोमेंटम निकालना है. फाइनल मोमेंटम अपने को इस डायरेक्शन में मिल रहा है, mv0. इनिशियल मोमेंटम इधर था, इसका चेंज निकालना है. तो जब कभी हम लोग चेंज निकालते हैं तो यू नो कि उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप चाहो तो उसकी वेलोसिटी का रिवर्स कर देते हो. सो फाइनल में से इनिशियल को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनिशियल की डायरेक्शन बदल देते हैं, तो ये भी mv0 आ जाएगा. अब इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो ये टोटल एंगल कितना रहा होगा, 120. जब कभी टोटल एंगल 120 होता है और आइडेंटिकल वेक्टर्स होते हैं तो उसका रिजल्टेंट भी आइडेंटिकल और सेम अमाउंट का आता है, और इसके एग्जैक्टली बीच पे आता है ऐसा. सो दैट्स रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी mv0. ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, आप सिंपली आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि ये अपना डेल्टा पी हो गया, और डेल्टा पी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अंडर रूट a² + b², दैट मीन्स mv0 का स्क्वायर प्लस mv0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mv0 cos 120. जब ये अप्लाई करोगे तो अपने को आंसर mv0 मिलने वाला है. सो पॉइंट इज की चेंज इन मोमेंटम mv0 आ जाएगा. अब ये बोलता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम ये आ रहा है 2 mv0 साइन समथिंग. अगर इसको हमको mv0 बनाना है तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, साइन की हाफ होनी चाहिए, सो दैट इससे कैंसिल हो जाए. इसका मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए. दैट मीन्स ये एंगल कितना होना चाहिए, अगर रेडियंस के टर्म में बात करें तो पाई/6 होना चाहिए, मीन्स x मस्ट बी 6. सॉल्व हो जाएगा. देन देयर इज द लास्ट प्रॉब्लम 18th. ये बोलता है कि एक फिगर अपने को दिया गया है और उस पर आपने एक होल बनाया r/2 रेडियस का. बेसिकली क्या हुआ कि एक डिस्क थी आपके पास, उससे आपने एक छोटा सा डिस्क निकाल करके इस वाले पोर्शन में रख दिया है. तो टोटल मास अभी भी m रहा, लेकिन क्या हुआ है कि आपने मास रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. तो लेट्स से टोटल मास हमारे पास m था. सो यहाँ पर रिमूवल ऑफ कैविटी, एडिशन ऑफ मास, दोनों का फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सियम जो आएगा, नया सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा वो अपने को पता करना है. अपने को पता है कि नया सेंटर ऑफ मास इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, कितने अमाउंट से शिफ्ट होगा, दैट्स द पॉइंट. तो हम रिमूवल ऑफ मास में क्या करते हैं, m
ओरिजिनल मास लिखते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा। रिमूव किया है, लेट से एम डैश मास रिमूव किया है, उसका सेंटर ऑफ मास कितना रहा होगा, उसका ये कोऑर्डिनेट रहा होगा -r/2, सो यू राइट लाइक -r/2। तो ये तो हुआ रिमूव्ड, आपने ऐड भी किया है तो प्लस कितना मास ऐड किया है, एम डैश जो यहाँ से निकाला था वो सेम मास को ऐड किया है, कितनी लोकेशन पे, वो r/2 है, +r/2 है, सो ये +r/2 पे जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास m था माइनस एम डैश प्लस एम डैश, तो ये तो वैसे भी 0 हो गया, तो टोटल मास m के बराबर आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फाइंड किए, माइनस माइनस प्लस हो गया और दोनों सेम नंबर हैं तो ट्वाइस हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा m डैश r और नीचे अपने को m मिलेगा। बेसिकली अपने को डिस्क का जो रिमूव की गई है, रिप्लेस की गई, उसका मास और टोटल मास का रेशियो निकालना है। हम लोग जानते हैं कि अगर m डैश लिखेंगे तो उसकी रेडियस लगेगी और पाई आर स्क्वायर लगेगा, तो डेंसिटी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब r/2 का स्क्वायर। टोटल के लिए सेम डेंसिटी टोटल रेडियस विच इज आर स्क्वायर आर। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो r/2 का स्क्वायर r/4 आ जाएगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे तो r/4 आ जाएगा। तो ये बताएगा कि ये r/4 इस डायरेक्शन में आ गया, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स पे जाना है, कितना जाना है, r/4 जाना है। आपसे बोलता है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास रिजल्टिंग इज r/x, x मस्ट बी 4, दैट्स आवर रिस्पॉन्स। ओके, सो इसलिए इसका आंसर 4 आ जाएगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया और एक करेक्शन दिखा, इसको एक बार आप और वेरीफाई कर सकते हैं। फिफ्थ का बी का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मैच कर रहा है, बाकी ऑल अदर क्वेश्चंस के जो रिस्पॉन्सेज हैं दे आर परफेक्टली ओके, सो जस्ट गो थ्रू इट, दैट्स ऑल, थैंक यू।